کہ حکیم کیوں اتنی شادی کرتے ہیں؟ حکیم کیوں اتنی شادی کرتے ہیں؟ الحمدللہ حکیموں کے پاس جو ہے نا وہ الحمدللہ دوسرے لوگوں سے زیادہ نسخے بڑے ہیں۔ ہاں بالکل۔ کتنے بھائی ہیں آپ لوگ؟ ہم 5 بھائی ہیں۔ سارے بھائی آپ کا نسخہ استعمال، مطلب آپ سارے بھائی آپ کے نقش و قدم پہ چل رہے ہیں؟ نہیں سارے بھائی نہیں چاہتے۔ کوئی برانڈ لانچ کیا ابھی آپ نے کسی نسخے کا؟ آپ نے نہیں میں خبر ہے جو مجھے اس میں کسی نے کوئی گندے کامنٹ لکھے نیچے، بات کر رہی ہوں میں صرف، ہے نا بھابھی؟ آپ کا وقت کلینک پہ زیادہ گزرتا ہے حکیم صاحب یا گھر کے مسئلوں میں؟ نہیں میرا جو وقت ہے وہ گھر بھی گزرتا ہے اور کلینک میں بھی الحمدللہ۔ گھر کے مسئلوں میں نہیں گزرتا؟ نہیں گزرتا ہے۔ سارے ماشاءاللہ آپ کے بچے، جی اور الحمدللہ۔ ایک آنے والا ہے 17 ٹوٹل بچے ہو جائیں گے ان کے، اور یہ ابو جی جو ہے نا ہے پوتا آنا ہے۔ پوتا آنا ہے، اچھا تو 16 بچے ایک پوتا آنے والا، ٹھیک ہے۔ خرچہ اس پہ زیادہ وہ کہانی نہیں خرچہ جو ہے نا وہ الحمدللہ چاروں کا اکٹھا ہی ہوتا ہے۔ میں انصاف کرتا ہوں، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ان سب کے پاس آئی فون ہے، ایک کو نہیں لے کے دیا، میں انصاف پورا کرتا ہوں۔ اوکے، آپ کی خود کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے پولیٹیکل سائنس میں۔ یہ مجھ سے بھی زیادہ پڑھی ہوئی ہے۔ صحیح بندی کی ڈیوٹی بچوں کی پرورش پہ لگائی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے ماشاءاللہ، تو بچوں کی صحیح لک آفٹر۔ شادیاں یہ دونوں کرتی ہیں اور فوتگیاں وہ دونوں ہینڈل کرتے ہیں۔ شادیوں پہ جانے کے لیے یہ دونوں ہیں اور فوتگیوں پہ فوتگیوں جانے کے کے لیے لیے وہ ہیں، افسوس یا جو کچھ بھی ہے۔ مطلب کوئی بیمار ہو جائے، کوئی اگر فوت ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اعتماد داری، مطلب رونا دھونا بھی آپ دونوں اچھا کر لیتے ہیں، اس لیے فوتگیوں پہ آپ لوگ جاتے ہیں، پٹنا پا لیتے ہیں، یا آپ آرام سے کر لیتی ہیں دونوں۔ ان کا تجربہ زیادہ ہے، وہ جو پٹنے والا آپ بول رہی ہیں نا، ظاہر سی بات ہے، نئی نئی شادی ہوئی تھی تو سب سے پہلے بڑی والی روئی ہوگی، پھر اس کے بعد بیچ والی روئی ہوگی، پھر تیسری والی جب وہ یوزڈ ٹو ہو گئی، پھر یہ تو ویسے ہی بھی خوشحال زندگی گزاری۔ یہ ایسی زندگی میں ہے کہ ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تینوں بیگمات کے ساتھ، تو میں نے کہا یہ گھر بار آپ سنبھالو، یہ میں نے آپ کو دیا، اور میں لاہور میں گھر ہے ہمارا، تو میں نے کہا میں ادھر جا رہا ہوں، تو ادھر میں اب چوتھی شادی کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم تھے جنہوں نے آپ سے شادی کر لی، اب آپ کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا، آپ انکل ہو گئے ہو، نانا بن گئے ہو، دادا بن گئے، اب آپ کو کون دے گا؟ اب تو کوئی نہیں دے ان تینوں کے ساتھ کتنے بچے ہو گئے ٹوٹل؟ گا۔ ٹوٹل میرے 16 بچے ہیں۔ ان کے ساتھ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ ان کے ساتھ تینوں کے ساتھ 12۔ آپ 3 کے ساتھ 12 اس کے 6 میرے اور ایک 5 6 اور 1، ٹھیک ہے، صحیح ہے، 12 ہو گئے۔ 12 ہو گئے، اور 4 ان میں سے ہیں ماشاءاللہ۔ او ماشاءاللہ، مطلب درجن کے بعد 4 اور، 1.5 درجن۔ 1.5 درجن، واہ بھائی، اچھا ٹھیک ہے۔ تو مجھے لگتا ہے زیادہ عیاشی میں رہ رہی ہیں، کیونکہ جب شو شروع بھی ہونے والا تھا نا تو میں حکیم صاحب کو دیکھ رہی تھی، الگ سے وہ سیلفی فوٹو چل رہی تھی، کھل جائیں گے بات یہ ہے کہ ہم پرانی ہو چکی ہیں، پرانی، آپ میں سمجھ گئی ہوں، یہی تو میں اگلوانا چاہ رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے بچے بھی ان میں کچھ ایسے بچے ہیں جو شادی شدہ ہے، اور بچوں کے بھی آگے پھر بچے ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب وہ دادا نانا والی سچویشن بھی ان کی شروع ہو گئی ہے، اینڈ آئی ایم امیزڈ۔ ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آئی، ابھی مجھے جیسے ہی بتایا گیا ان کے بارے میں اور ان کو دکھایا گیا میرے سامنے جب آئے، تو یہ تو خود بھی بڑے ینگس ہیں، اور اتنے جلدی کم وقت میں ان حکیم صاحب نے جو ہے 4 شادیاں بھی کی، 16 بچے بھی کیے، اور اس کے بعد اتنے ان کے آگے کے بھی بچے اتنی کامیابیاں حاصل کر لیں، یہ کیسے ممکن ہو سکا؟ اس کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے کاشف قصوری صاحب۔ کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم۔ کاشف صاحب مجھے بتائیں، وہ کہتے ہیں نا یہ قصور میرا ہے، یہ قصور تیرا ہے، دل تیرے ہی خاطر مجبور ہوا ہے، تو یہ قصور ہے یا پھر یہ قصور سے کوئی پسند کیا؟ نہیں، یہ قصور نہیں ہے، یہ الحمدللہ اللہ پاک کا مجھ پہ خاص کرم ہے، اور اللہ پاک نے رونقیں لگا دیں الحمدللہ۔ 4 بیگمات اللہ پاک نے مجھے جو ہے نا وہ گفٹ کے طور پہ دیں، اور الحمدللہ ایک بیگم ایک سے بڑھ کے ہے ماشاءاللہ۔ ریلی؟ تو پہلی شادی کیسے ہوئی اور کن سے ہوئی؟ ان میں سے کون سی بیگم جو ہے وہ پہلی ہیں آپ کی؟ یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نام سلمہ ہے۔ بیٹھی تو ساری ہیں، جو آپ کے سر پہ بیٹھی ہیں ہاں میرے سر پہ، یہ دیکھ لیں آپ، ہے نا، الحمدللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ جو ہے سب سے پہلے ہیں، اور ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام سلمہ ہے۔ سلمہ۔ تو سلمہ کو مل گیا بلمہ پہلا۔ اور یہ جو تھی سچویشن پیار محبت سے شادی ہوئی تھی یا پھر گھر والوں نے کرائی تھی یا کزن میرج ہے؟ ہاں یہ ارینج میرج ہے، اور یہ میری کزن ہے،
اب آپ کی وزن ہے آپ پہ اب آپ پہ نہیں وزن نہیں ہے الحمدللہ. ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ ماشاءاللہ ان کا قدم پڑا اتنا مبارک کہ قدم تھا. باقی تین ان کی رونق میں آئی. یہ ماشاءاللہ اتنا ان کا جو قدم مبارک ہے کہ آپ دیکھ لیں 2000 میں. تو آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ باقیوں کے قدم مبارک کوئی نہیں تھے؟ نہیں ان کے بھی مبارک ہیں ماشاءاللہ, ان کے بھی بہت زیادہ مبارک ہیں, اور میں بڑا خوش نصیب انسان ہوں پوری دنیا میں کہوں گا الحمدللہ. واہ. تو جو سلمیٰ جی ہیں ان سے آپ کو پھر محبت ہو گئی شادی کے بعد, گھر والوں نے کروائی, ٹھیک ہے, اس کے بعد محبت سلسلہ شروع ہوا ہوگا. جی جی بالکل. تو پھر کتنے بچے ہیں سلمیٰ جی سے؟ ان میں سے 5 ہیں. 5 بچے. انہوں نے آپ کا صحیح خیال رکھا, خدمت کی آپ کی, کھانا پکانا, گھر گرہستی سب سنبھالی, سب دیکھا, آپ کو دیکھا؟ جی جی بالکل, میرا بہت خیال رکھا. لیکن پھر شمیم جو نمبر 2 میری وائف ہیں, وہ ایسا تھا کہ حکمت کا کام کرتے ہیں, تو نمبر ڈائل کیا, کسی مریض کا کرنا تھا تو مل ان کا گیا, تو پھر ان سے جو ہے نا یہ نمبر 2 پہ جو بیٹھی ہوئی ہیں, شمیم نام ہے ان کا. شمیم آپ کا نام ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ جی میرا بھی ادھر قصور سے ہی ہے. اس میں آپ کا بڑا قصور ہے. تو جب ان سے فون پہ بات ہوئی تو وہ بات 2004 میں ان کے ساتھ شادی ہوئی, 2000 میں ان کے ساتھ ہوئی اور 2004 میں. تو ان میں سے ماشاءاللہ 6 بچے ہیں میرے. تو ان سے کتنے دوبارہ بتائیے گا؟ 6 نہیں, پہلی والی سے 5, پھر ادھر سے 6. جی جی. ان سے محبت کم تھی جو 4 ہوئے؟ نہیں 5 ان سے آپ سے 6 محبت بڑھ گئی, 5 کے بعد 6 بڑھ گئی, محبت بڑھ گئی, پھر آپ سے محبت بڑھ گئی. ہم بچوں کے حساب سے بھی دیکھیں گے, کیونکہ عورتیں عموماً یہ شکایت کرتی ہیں کہ بھائی 10 سال ہو گئے شادی کو اور ہمارے 5 بچے بھی ہیں, مگر میرے شوہر نے مجھے محبت نہیں کی. تو ہم یہ اس کا بھی اندازہ لگائیں گے. اس کے بعد پھر شمیم کے بعد آئی ہیں بہن کون سی میری؟ سدرا کہاں ملی ہیں آپ کو؟ سدرا جو ہے نا وہ شمیم کی تو سہیلی تھی, مطلب ان کی سہیلی تھی. تو جب یہ شمیم کی سہیلی تھی؟ جی 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 جی. آپ موسٹلی ہوتا ہی ہے نا کہ بیگمات کی جو سہیلیاں ہوتی ہیں وہ تو کرتی سہیلی سے دوستی اس لیے کیونکہ ان کو اپنے میاں کی خاوند کی برائی کرنی ہوتی ہے. تو یہ آپ سے کرتی تو ہوں گی ہلکی آنچ پہ؟ نہیں کرتی نہیں تھی, ایسی کوئی بات نہیں. ہلکی پھلکی دل کی تو ساری بات بتاتی ہوں. نہیں, انہوں نے تو اچھائیاں ہی بیان کی تھی نا, جس کی وجہ سے پھر دل آ گیا تھا. اچھا, ہاں جی. کیوں, کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو؟ اور جا کے بیان کریں, لوگوں کو اور بتائیں میرا میاں اچھا ہے, میرا میاں اچھا ہے. وہ خود ہی خوش, اب ہون آرام ہے یا ابھی بھی دوا چاہیے حکیم صاحب سے؟ یہ اچھے تھے تو جو بندہ اچھا ہو اس کی تعریف تو کرنی چاہیے. تو ایسی تعریف عورتوں کے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے آپ کے حق پہ آ کے ایسی تعریف کا تاج پہنا ہے نا, ساری زندگی بھگتے. اچھا, تو آپ کی پھر دوست بھی نکلی اور دوستوں نے پھر مل کے کمپرومائز کر لیا. آپ کو محبت کب ہوئی پھر؟ دوست کے میاں سے محبت ہو گئی جب میں نے انہیں دیکھا, جب میں ان سے ملی, ان سے باتیں کی, گفتگو ہوئی, تو بس ان سے بھی باتیں سنتی تھی تو اچھے لگے. پھر آنا جانا ذرا زیادہ شروع کر دیا ہوگا کہ ہے نا, ان کی بھی پھر دوستی زیادہ بڑھا لی ہوگی. پھر بات کیسے, سلسلہ کیسے شروع ہوا, پھر بولا کیسے کہ میں نے تو ڈائریکٹ ان سے بات کر دی. ان سے؟ ہاں جی, میں نے انہیں بتا دیا تھا. ارے یہ آپ کی سہیلی آپ کی ساس نہیں ہے جو ان سے آپ نے بول دیا کہ میں آپ کے بیٹے سے شادی. ساس سے باتیں نہیں ہوتی, دوستوں سے ہو جاتی ہے. نہیں بس ادھر ہی رہنا, آپ نے میرا پورا کیس سننا ہے کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. بریک میں کچھ آپ سے بھی سمجھوں گی اور آپ سیکھیں. آپ نعیمہ جی کے میاں آئے ہوئے یہاں پہ, من کو بھی بتا, کچھ سیکھے, ایک کر کے بیٹھے آپ. کیا ملا آپ کو زندگی میں, کیا ملا آپ کو زندگی میں؟ نسخے ہر بات پہ نسخے ملے ان کو. اچھا, تو یہاں پہ یہ حکیم صاحب بھی یہ سنیں. اچھا, تو پھر مان گئے؟ ان کو کیسے منایا؟ ان کو میں نے بتا دیا, انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں باجی سے. آپ نے یہ کہا ہوگا میں جہیز میں جتنا زیور لاؤں گی میں تمہیں دے دوں گی, تم اپنا زندگی کا زیور میرے حوالے کر. بس ایسا ہی ہے. پھر انہوں نے ان سے بھی بات کی؟ انہوں نے ان سے بات کرنی تھی تو آگے بات پڑھنی تھی نا. اچھا, مین ہیڈ ادھر ہی ہے, یہ ہمارے ہیڈ کوارٹر ادھر ہی ہے. ہاں جی بالکل. اوہ مائی گاڈ. پھر یہاں سے بات اپروو کیسے ہوئی؟ پھر انہوں نے آپس میں ان کی کوئی کھچڑی بنی, کچھ. آپ کی کھچڑی کیا تھی, آپ نے کیسے منایا؟ آپ کیوں چاہتی تھی کہ وہ بھی آ جائے؟ یہ میری بھی دوست تھی اور یہ ہماری ہمارے گھر میں اکثر آتی جاتی تھی. تو ہمارا ایک ہی تو گھر تھا.
अच्छा। तो ये भी इससे बड़ी मुतासर थी, बड़ी मुतमिन गुस्से थी। वाली क्यों लग रही है? नहीं बड़ी है? बड़ी मजे की है तो इतनी आती। बहुत अच्छा, गुस्से वाली नहीं है आप, ठीक हाँ है। जी। तो आप मान गई। रिक्वेस्ट मिन्नत आप तो अपने बहुत मियाँ ज्यादा। से बहुत ज्यादा तंग लग रही है मुझे। आप जैसे नहीं होता कुछ तंग कि भाई जान छुटे, मेरी दूसरी आए तीसरी आए जो आए मगरू लगे, मेरी जान छुटे। ऐसा तो कुछ नहीं सीन था। आपको तंग तो नहीं करते थे, खाना पकाओ, ये लाके दो मुझे, वो करो, रोटी गरम नहीं है, नहीं जी। कपड़े इस्त्री नहीं हुए मेरे, कोई तंग आपको तो नहीं? आपने कहा सबको ले आती हूँ, काम बढ़ जाएंगे, कहाँ से मैं तनख्वाह देती फिर? ऐसा तो कुछ नहीं सीन था। नहीं ऐसे नहीं था। ऐसी कोई बात पक्की बात है। हाँ जी, वो प्यार करने वाले और ख्याल करने वाले। तो ख्याल करने वाले का इतना ख्याल थोड़ी करते। अच्छा, आगे चलते हैं। आप बताएं जी, आप कैसे इनकी जिंदगी में आई? आपका नाम क्या है? फातिमा। फातिमा कैसे आई आपकी जिंदगी में हकीम साहब? मैं बताता हूँ। जब ये तीनों की शादी हो गई, क्योंकि जब तीनों की शादी आप ही से हुई है? हाँ, मुझसे ही हुई है, मतलब मैंने मेरे कहा याद दिला साथ, दी। हाँ मेरे साथ हो गई। उसके बाद जो है ना, इनसे मेरा झगड़ा हो गया। तीनों से झगड़ा हो गया। इन्होंने कहा कि हम अब स्ट्रांग हो गई हैं, हम इन्होंने एक पार्टी बना ली। मैं थोड़ा सा ये मतलब तंग करने लगी, तो मैंने कहा कि आप अपना घर बार रखो। अच्छा, इन्होंने कमेटी बना ली अपनी, हाँ। अपनी मोनोपली, तीन सहेलियां एक हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल। और मोहब्बत जो है वो तीनों में ज्यादा हो गई आपकी, है ना? जी जी। तीन सहेलियां खड़ी खड़ी मियाँ की शादी कराए घड़ी घड़ी। हमारी ब्रेक हो गई थी। ब्रेक में मुझे ये बताते हैं कि मैं तो डर गया था, मैं तो परेशान हो गया था, आपके पास आ नहीं रहा था, क्योंकि वो काशिफ ज़मीर वाला जो है ना पॉडकास्ट देखा था। तो मैंने कहा आप मुअज़्ज़ज़ इंसान है, आप कौन सा नमूदो नुमाइश कर रहे हैं सोने की? सिर्फ आपकी नमूदो नुमाइश आपकी बेगमात और बच्चे ही है। उसकी आपको इजाज़त है? जी जी, आपको इस्लाम इजाज़त दे रहे हैं, और आप अल्हम्दुलिल्लाह। कानूनी तरीके से कर रहे हैं। एक प्रॉपर निकाह नामा है, डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, एक के बाद एक रजामंदी से पूछ के इजाज़त लेके आपने स्टेप बाय स्टेप किया है। अब ये कैसे आपकी ज़िंदगी में आई, इनके बारे में भी बता दें। ये ऐसी ज़िंदगी में है कि इनके साथ झगड़ा हो गया, तीनों बेगमात के साथ। तो मैंने कहा ये घर बार आप संभालो, ये मैंने आपको दिया, और मैं लाहौर में घर है हमारा, तो मैंने कहा मैं उधर जा रहा हूँ, तो उधर मैं अब चौथी शादी करूँगा। तो इन्होंने कहा कि ये हम थी जिन्होंने आपसे शादी कर ली, अब आपके साथ कोई शादी नहीं करेगा, आप अंकल हो गए हो, नाना बन गए हो, दादा बन गए, अब आपको कौन देगा? अब तो कोई नहीं इन देगा। तीनों के साथ कितने बच्चे होगा टोटल? टोटल मेरे 16 बच्चे हैं। इनके साथ टोटल कितने हुए? इनके साथ तीनों के साथ 12। आप तीन के साथ 12 पांच हैं। इसके हैं, 6 मेरे और एक 5, इसका। 6 और 1, ठीक है, 12 सही है, 12 हो गए। 12 हो गए, और 4 इनमें से हैं माशाल्लाह। ओ माशाल्लाह, मतलब दर्जन के बाद 4 और। हाँ, 1.5 4 और। दर्जन। 1.5 दर्जन, वाह भाई। अच्छा ठीक है। तो मैं गया, मैंने लाहौर एक आंटी थी रिश्ते वाली, उसको मैंने बोला कि मैं फौरी मुझे एक रिश्ता करवा के दो। इन्होंने मुझे, मतलब वो मैं गुस्से में था या जो भी समझ लें, जैसे वो रांझे को कहा गया कि जो तू हीर लैके आएगा ना, असी वेख लांगे सियालां दे हीर। तो इन्होंने जब मुझे ये बोला, फिर मैंने वो रिश्ते वाली को बोला, मैंने कहा एक रिश्ते की फौरी ज़रूरत है। तो वैसे मैं आज से तकरीबन 8-10 साल हो गए इनसे शादी, लगता भी नहीं था उस टाइम कि मेरी पहले भी 3 शादियाँ, मतलब मैं ऐसे लगता है जैसे अभी मैं बिल्कुल 0 मीटर हूँ। तो आपने रिश्ते वाली को बोला ऐसे जा जैसे मेरी फूफी लामा लेके आती है, वैसे वो लामा आ गया। उसने मुझे कोई 3-4 लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जिनमें ये फातिमा, काशिफ इनकी भी थी माशाल्लाह। आपने उनको सब बता दिया था इनका सब कुछ, उसके बावजूद नहीं, मुशाकिल? अभी इनको नहीं बताया इनको, लेकिन निकाह से पहले मैंने इनको बता दिया, तब तक इन्होंने कबूल कर लिया कि ठीक है, बता दिया था आपके घर वाले राजी हो गए? नहीं, उनको नहीं बताया, उनको नहीं नहीं पता, उनको नहीं पता, उस वक्त नहीं पता था उनको नहीं, इनको पता था, उनको नहीं पता था। तो वैसे भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वो आपने पहले अंडरस्टैंडिंग की, बताया की। सब कुछ, अपने कॉन्फिडेंस में लिया। लिया। अच्छा, फिर आपने क्या क्या डिमांड की? पता मैंने तो कोई भी डिमांड नहीं की, पर मैंने इतना जरूर कहा था, मैंने कहा क्यों ना, कोई डिमांड नहीं नहीं, की? सच में नहीं की है। मैंने कहा ना किसी का हक मानना, ना मेरा हक मानना, मुझे नसीब में था, वो तो हो ही गया। तो अगर मैं पहली होती, इनको तो हक था, ये कर सकते थे, तो मेरे बाद भी तो 3-4 करनी थी। कोई तो डिमांड और की होगी कि भाई अब तुम मुझसे नहीं, शादी नहीं, करो तो कोई रहना डिमांड तुमने नहीं। मेरे साथ इन्होंने है, ना, मुझे उधर नहीं याद है, जाओगे तुम। मुझे ना इन्होंने कहा कि मेरे पास ना घर भी नहीं है, मेरे पास गाड़ी भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं कबूल हूँ।
हैं? मैंने कहा पता नहीं मुझे आजमा इतने कमले आप लोग तो कोई नहीं है। नहीं वो मैंने वैसे कहा था कि ये छोड़ती है या नहीं ये छोड़ती है कि नहीं छोड़ती, इतना आजमाइश उधर आजमाइश की ना तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कबूल है, कुछ नहीं है आपके पास तो मान गई आप? हाँ, मान गई। भाई तुम आसमान से ही उतरी हो, आम इंसान नहीं मान सकता। अच्छा मैं अब आपको ना मुश्किल में डालने लगी हूँ, खड़े हो जाएं भाईजान। हो गए जी। भाईजान बोला मैंने, भाईजान। नहीं भाईजान बोला। अब ऑप्शन भी नहीं बचती। हाँ भाईजान है, देख ले आप, ठीक है। अच्छा ये सारे माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। एक आने वाला है, 17 टोटल बच्चे हो जाएंगे इनके। और ये अब्बू जी जो है ना, है पोता आना है। पोता आना है। अच्छा तो 16 बच्चे, एक पोता आने वाला, ठीक है। और कुछ बच्चे जो हैं वो नहीं आए ठंड की वजह से, वो बहुत छोटे हैं ना। तो चले खैर, मैं आपको एक एक करके खड़ा करती जाऊंगी, आपने मुझे इनके नाम बताने, इनकी वालदा के साथ। इधर मुंह उधर कर लीजिएगा, कैमरा उस तरफ है, ठीक है। भाई तुमने बताया इनका नाम बताया, जल्दी जल्दी। मदीहा, मदीहा, शमीम, शमीम, ओके आप खड़ी हो, खड़े हो बेटा। सायरा, हाँ। सलमा, ओके, सायरा सलमा नहीं, सायरा सलमा की बेटी। हाँ बेटी, ओके, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमजा, हाँ शमीम, ओके, नबील, सलमा का बेटा यानी कि, और ये सिदरा की बेटी, ओके। और ये फातिमा की है, बोलो शुक्रिया। ओके, और ये भी सलमा से है। नाम तो बताएं। ये मायरा मायरा जी, ये सना, और अदील। अदील। इधर आए, इधर दोबारा खड़े हो मेरे पास, इस तरफ इधर आ जाए। जल्दी जल्दी नाम लेने उन बच्चों के एक साथ, लाइन में खड़े हो नहीं, बेटा, जल्दी जल्दी नाम ले ले। मदीहा, सना, हमजा, नबील, सना, मायरा, मिनाल और अदील। इतनी स्पीड में मैं भूल जाता हूँ। घर में माशाल्लाह 16 बच्चे हैं, मैं भूल जाता हूँ, यकीन करें। ये आपने मुझे मुश्किल में डाला है। बाद का तो मैंने सलमा को बुलाना होता है तो नाम फातिमा का निकल जाता है, तो मुश्किल हो जाता है। चले अब यहाँ से जल्दी, मगर जल्दी जरा स्पीड से जल्दी जल्दी लेना है। अदील साहब अदील, मलाल, मायरा, सना, नबील, हमजा, सायरा और मदीहा। पास हो गए। घर से बाहर जब जाते जी, हैं जी। और जब घर पे वापस आते हैं तो हाजिरी लगाते हैं हाजिरी कि बच्चे सारे पूरे, ये हाजिरी नहीं, होती हाजिरी है? ये है ना, हाजिरी लगाने के लिए तो मैं बच्चों पूछता की हूँ। हाजिरी पूछते नहीं? हाँ पूछता हूँ मैं कि मतलब जैसे अदील या किसी को आवाज देनी है, वो नाम ऊपर नीचे हो जाते हैं मुझसे। 16 बच्चे ज़ाहिर सी बात है। आपका वक्त क्लिनिक पे ज्यादा गुजरता है हकीम साहब, या घर के मसलों में? नहीं मेरा जो वक्त है वो घर भी गुजरता है और क्लिनिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह। घर के मसलों में नहीं गुजरता? नहीं गुजरता है। अच्छा आपके पास एक चाय की प्याली, एक कप है, ठीक है, उसमें आपके पास गरम गरम चाय आपको मिली है, मगर चाय का कप एक ही है, चाय भी आपके पास एक ही है। अब उसको अगर आपने किसी के साथ शेयर करना तो किसके साथ शेयर करेंगे? 4 हैं इनमें से, किसके साथ चाय पियेंगे एक कप में आधी आधी? मैं एक घूंट भरूं, एक घूंट लगा के। नहीं, एक के साथ शेयर करना है। एक के साथ, फिर वो बड़ी के साथ। डरते हैं। ओए ओए रो। नहीं, उसका कदम मुबारक है, उसने तो दुआएं की हैं कि मेरे अरे जैसा। तो इसका भी तो कदम मुबारक था। मुझे बताओ, कुछ जुगत मार के बताओ जल्दी से, कुछ जुगत लगाओ मुझे। सुनो, तुमने कभी जुगत नहीं लगाई आने वाली इनकी बेगमात को कि तोड़ा मुंह एंजे के अगे जाके कहंजे? कोई लगाई है कोई जुगत? कोई जुगत मार के दिखाओ मुझे, कोई जुगत बताओ। आती है? हाँ जी। लगाओ जुगत कोई। हाँ लगा दो, लगा दो, मियाँ को लगा दो। हाय हाय लगाओ लगाओ लगाओ। इनको बोलो कि भैंस दी पूछल ते झूठे लैन वाले। बोलो, कुछ तो बोलो। या बोल है कुछ नहीं बोलनी मैंने, आज इतनी जुगते लगा दी। आज क्यों तुम घबराई हुई हो? अच्छा मैंने सुना इनकी जुगते बहुत है। हाँ जी, जी, अच्छा मुझे ये बताइए कि घर में ये जब आप ये शॉपिंग वॉपिंग करानी होती है, हर बेगमात का शौक यही होता है कि भाई शॉपिंग पे जाना है, तो सबसे ज्यादा शॉपिंग कौन सी बेगम करती है? ये वाली जो बोल नहीं रही यही करती है सबसे ज्यादा शॉपिंग करती ये करती है। अच्छा खर्चा से इस पे ज्यादा वो कहानी नहीं, खर्चा जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह चारों का इकट्ठा ही होता है। मैं इंसाफ करता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं इन सब के पास आईफोन है, एक को नहीं लेके दिया। मैं इंसाफ पूरा करता हूँ। ये है कि अगर इसने मेरा 10,000 लगा दिया है, वो 10,000 जो उनका दिल करता है उस पे लगाएं। अच्छा। लेकिन 10,000 उनका, 10,000 सबका, मतलब इक्वल इंसाफ करता हूँ अल्लाह पाक। अच्छा रूटीन क्या है, टाइम टेबल क्या है घर का? चारों को टाइम कैसे मैनेज करके देते हैं? फोन तो मैनेज करके दे दिया आईफोन, मगर टाइम कैसे मैनेज करते हैं? टाइम इज द मनी। जी जी, टाइम ऐसा है कि हर एक को एक एक रात जो है ना वो दी हुई है,
دن میں جو وہ اپنا جو دعا خانے ہیں یا ادھر جاتا ہوں, رات جو ہے نا وہ ایک ایک سب کو دے رکھی ہے. اچھا مگر دیکھیں ہفتے تو سب کے ہوتے ہیں نا, جی جی حق تو سب کا ہے, جی جی. تو پھر وہ کس طرح سے مینیج ہوتا ہے, مطلب نہیں, جب ایک رات دے دی تو وہ مینج ہو رہا ہے نا, ایک رات ایک کو ٹائم دے دیا, ایک کو دے دیا, تو ایسے یہ سسٹم چلتا رہتا ہے. اچھا سب کو پھر پتہ ہوتا ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ آج مطلب ایک جگہ بھی ہم رہتے ہیں, ہمارا ادھر فارم ہاؤس ہے ادھر. تو آپ میری بات سنیں, اچھا خاصا گھر سے نکل گئے تھے, ان کے پاس چلے گئے تھے, پھر واپس آئے کیوں؟ واپس اس لیے آیا کہ یہ تینوں پھر آئی, جب ان سے الگ ہو گئے تھے, الگ ہو گئے نا, ان سے شادی ہو گئی, تو یہ پھر ان کو پتہ چل گیا کہ رانجھا نے انہیں شادی کر لی. رانجھا ہاں جی. تو پھر یہ آئیں, ہمیں منایا اور کہا, ان کو قبول کیا کہ وہ ہماری چھوٹی بہن ہے, ہاں, تو ہم آپ کو لینے کے لیے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, میں تو جوک بھی کر رہی ہوں, خیر اس میں جوک آپ پلیز ہمارا یہ جوک ہم مجھے اس طرح سے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ایک اجازت ہے اسلام میں, اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, انہوں نے بڑے حق اور اس طریقے سے انہوں نے شادیاں کی. مگر مجھے ایک بات بتائیں, جب ایک ماں کو آلریڈی بچے پتہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ہماری ماما ہے, ہمارے بابا ہے, جب دوسری شادی کرنے والی کہانی ہوتی ہے تو بچے بڑا منہ بناتے ہیں, بچے بگڑ جاتے ہیں, بچے کہتے ہیں ہم نہیں جانتے, ہم اپنے باپ سے نہیں ملیں گے, ہم اپنے باپ سے نہیں بات کریں گے. تو یہ وہ سین کچھ ہوا بچوں کے ساتھ؟ نہیں, الحمدللہ ایسا کوئی سین نہیں ہوا, اور میرے بچے جو ہیں وہ الحمدللہ فرما بردار ہیں. سب سے پہلے جو بچے ہیں وہ کون سے؟ عدیل بڑا ہے؟ عدیل مجھے بتاؤ, تمہیں کوئی دکھ ہوا, کوئی تکلیف ہوئی؟ انہوں نے تو خوشی خوشی رخصت کر دیا, وہ جیسے کوئی دکھ نہیں, کوئی تکلیف نہیں. کیوں؟ الحمدللہ سے تمہارے بابا تھے, بابا ہیں الحمدللہ, نے اپنے بابا آگے شیئر کروا دیے. امیاں بھی ہیں الحمدللہ, امیاں الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے لڑکا. کون سی ساری جو میں وشز ہوتی ہیں ایک بچے کی کہ میں یہ کروں وہ کروں, تو وہ الحمدللہ سے شروع سے پوری ہوتی آ رہی ہیں. تو پھر ان کی جو وش تھی پھر انہوں نے وہ کیا. تو بابا کے ساتھ لڑائی وڑائی کوئی نہیں کی کہ بابا یہ کیا طریقہ ہے, آپ ماما کے ساتھ ایسے کیوں کر رہے ہیں, آپ دوسری شادی کیوں کریں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. ارے واہ یار, یار تربیت اچھی ہے. میں ایک بات بتاؤں, تربیت. اس کے بعد کون سی امی کو ٹائم دیتے ہیں آپ بتائیے گا گڑیا, سب سے زیادہ آپ نے بتانا ہے کس امی کو ٹائم دیتے ہیں؟ سب کو برابر دیتے ہیں. سب کو برابر ٹائم دیتے ہیں. آپ کس کی بیٹی ہیں؟ میں سلمہ. سلمہ کی بیٹی ہیں. اور کیا کہتے ہیں, آپ نے نہیں کہا اپنی امی کو کہ بابا کیا کر رہے ہیں, ہم دوسری آگے شادی کریں گے؟ آپ نے تو کوئی غصہ کیا, کوئی ناراضگی, آپ میرے بابا ہیں میں نہیں چاہتی ہوں شادی کریں, یہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں ایسا نہیں. کیوں؟ تب میں چھوٹی تھی. اب اچھا چھوٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے. تم کتنے سال کے تھے؟ میں جب یہ وہ دوسرا شادی انہوں نے کیا تو تقریباً میں اس ٹائم پہ کوئی 4 میں ہوئی ان کی شادی, تو میں تقریباً 2 سال کا تقریباً تھا. اچھا یہ بڑا تیز چکر چلایا ہوا کہانی کا سین ہے. بچے چھوٹے چھوٹے نکے نکے ہوتے ہیں, بچوں کی پرمیشن سے پہلے کہانی کر لیتے ہیں اپنی. اچھا آپ کون سے نمبر پہ ہیں؟ میں 3 نمبر پہ ہوں, سب سے بڑی میری سسٹر ہے, اس کے بعد بھائی ہے, میں اس کے بعد میں ہوں, سلمہ میری امی ہے. آپ مجھے غصے والے لگ رہے ہیں, آپ نے کہا ہوگا بابا نہیں ایسا یا میری ماں رہے گی یا آپ کی دوسری. نہیں میں نے کہا جو کرتے ہیں کرنے تو ان کی مرضی, انہوں نے کرنا ہے, ہمیں قبول ہے ہمیں. بابا نخرے سب سے زیادہ کس کی آپ کی کون سی جو بابا کی بیگم ہے ان کو اٹھاتے ہیں؟ سب کے اٹھاتے ہیں, سب کے اٹھاتے تو یہاں کٹھی بیٹھی ہوئی ہے. نہیں سب کے اٹھاتے تو ایک تو پیارا ہوتا ہی ہے. نہیں سب کے اٹھاتے ہیں تو کٹھی بیٹھی ہوئی ہیں. اگر ایک کس کے اٹھاتا تو پھر مجھے بتا, تم بھی شادی کرو گے 1 2 3 4؟ میں فی الحال نہیں, ابھی فی الحال ابھی ایک بھی نہیں ہوئی, ایک کروں گا. اچھا تم مجھے بتا تمہارے کیا خواب ہے, آگے آؤ. میں نے بڑا ہو کر ڈاکٹر اور حکیم دونوں بننا ہے. تیار ہو جائے پھر اتنی شادیاں کرنی ہے. کہ حکیم کیوں اتنی شادی کرتے ہیں؟ حکیم کیوں اتنی شادی کرتے ہیں؟ الحمدللہ حکیموں کے پاس جو ہے نا وہ الحمدللہ دوسرے لوگوں سے زیادہ نسخے بڑے ہیں. ہاں بالکل. تو مجھے بتائیں آپ کے نسخے زیادہ اسٹرانگ ہیں یا آپ کا رشتہ زیادہ اسٹرانگ ہے؟ رشتہ زیادہ. رشتہ زیادہ. آپ نے یہ کیسے رشتے کو اتنا اسٹرانگ کیا؟ آپ کی ایک اور بیٹی رہ گئی, ان سے بھی ماشاءاللہ پیاری سی ہیں اور بڑی اچھی بچیاں ساری تربیت. آپ کا کیا نام ہے گڑیا؟ مدیحہ. مدیحہ. آپ کی امی کون سی ہیں؟ شمی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی امی کی شکایت کرنے کے لیے کسی دوسری امی کے پاس جاؤ؟ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا, انہوں نے کبھی شکایت کا موقع ہی نہیں دیا. کبھی تو امی کو کوئی تنگ کرتا ہوگا. نہیں ایسے امی نہیں کبھی ہوا. اپنے دکڑے تمہارے آگے روتی ہوں گی. نہیں وہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ ایسا کیا, ان کی دوسری لے کر آیا, تم دیکھنا.
मैं इसके साथ करती क्या हूँ? उनकी ये है। उनकी 3 सहेलियां हैं पहले भी। कौन है बच्चे? नहीं, अगर कभी कोई माँ का आदेश कहे तो ये बच्चे आगे से कहते हैं हमारे पापा हैं ही कितने खूबसूरत, उनका हक था। भाई आप तो, मैं तो बता रही हूँ कि कितने भाई हैं आप लोग? हम 5 भाई हैं। सारे भाई आपका नुस्खा इस्तेमाल, मतलब आप सारे भाई आपके नक्शो कदम पे चल रहे हैं? नहीं, सारे भाई नहीं चल रहे। कोई ब्रांड लॉन्च किया अभी आपने किसी नुस्खे का? आपने नहीं, मैं खबर आ जाओ मुझे इसमें किसी ने कोई गंदे कमेंट लिखे नीचे। बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, है ना भाभी? बात करने में क्या? अच्छा, तो कभी कोई आपने सोचा कोई ऐसी अपनी प्रोडक्ट जो है वो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लॉन्च करेंगे। फिलहाल मैं सऊदी प्लीज दूसरी कोई बीवी लॉन्च नहीं करती अब। ये अब यहाँ खत्म, स्टॉप बोल दें, अनाउंस करें आज। नहीं, देखें इस्लाम में जो है ना वो 4 की इजाजत है। तो आपने 4 खुशहाल बराबर हुकूक के साथ रखी है। अब पंजमी की गुंजाइश नहीं है। इनका ये मना नहीं कर रही मुझे, ये तो कहती हैं अगर पंजमी भी करनी है 5, हमें कोई एतराज नहीं है, पूछ सकते हैं इनसे। वो एक पुराना ड्रामा आता था, हम 5 पापा 5, वो चलेगी फिल्म। अब ना कीजिएगा, स्टार प्लस का ड्रामा चलता था। अच्छा मेरी बात सुने, पॉकेट मनी सबकी बराबर की बांधती हुई है? नहीं जी, ऐसा है कि इनका जो है वो अल्लाह पाक की तौफीक से जितना होता है वो मैं करता हूँ, लेकिन जो पैसे हैं वो बड़ी के पास होते हैं। अगर इनको चाहिए, कोई ज़रूरत है, वैसे तो अल्लाह पाक इनकी हर ज़रूरत ही पूरी कर रहा है। अच्छा अब मैं गेम समझी, वो जो बड़ी है जी जी उनको आपने हेड ऑफ द फैमिली बना दिया है, जी जी और उनके हाथ में खर्चा, उनके हाथ में सारे डिसीजन सब कुछ है, और ये दोनों को चलाती हैं। ये इनके हाथ की कठपुतलियां हैं। ये इनके कहने पे जीती हैं, इनके कहने पे मरती हैं। ऐसे ही है? ऐसा ही है। ये फर्मा बरदार हैं ये और तीनों। इनको पता है इनकी खिदमत करनी है तो इस घर में टिके रहना है। ऐसे ही है जी। हाँ, मेरे बच्चों की ख्वाहिशें, मेरी सब कुछ पूरी तब होनी है मेरे मियाँ के साथ जब मुझे इनको खुश रखना है, क्योंकि वो सबसे पहली थी, जाहिर सी बात है उनकी जिंदगी में आई थी, तो आप सब लोग रिस्पेक्ट रखते हैं उनकी। ये वैसे अच्छी बात है इसमें ये मुझे बताइए आपकी फैमिली अलग क्यों है? आपको यहाँ पे काट के क्यों रखा हुआ है? इधर नहीं, आप मुझे काट जरा के आपसे नहीं रखा हुआ। पूछे। काट के मीन्स आप, मुझे लगता है ज्यादा अय्याशी में रह रही है, क्योंकि जब शो शुरू भी होने वाला था ना तो मैं हकीम साहब को देख रही थी, अलग से वो सेल्फी फोटो चल रही थी, मगर वो उनके साथ नहीं चल रही थी। मैं थोड़ी पास से, अरे जानदा चुप पिक्चर बना लो। कर, जो तुमने उनकी तरफदारी में कुछ बोला। देखिए हल्की फुल्की आंच तो होती है, ठीक है, मुझे लगता है आपकी आंच इधर ज्यादा है। वो मुझे नहीं, पता नहीं। ना। चुप करो तुम, खबर है जो तुम बोलने नहीं दे रही, चुप करो। डर ये रही है कि इसके सारे राज खुल जाएंगे। बात ये है कि हम पुरानी हो चुकी हैं। पुरानी आप मैं समझ गई हूँ, यही तो मैं उगलवाना चाह रही हूँ। नहीं ये बात हाँ। नहीं है, ये हम सबसे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी नहीं आई है। बाकी ये इनकी हमारे थोड़ी प्यार भी में बात तो वैसे रोज उन्होंने पुरानी प्रैक्टिकल होगी की है, नहीं बात उन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल भी की है, जाहिर सी बात है वो नई नई भी आई हैं। नहीं, और 9 उनका साल हो गया, पुरानी हो गई। 9 साल हो गए माशाल्लाह। ओके, इनको भी 9 साल हो गए। हो गया। अब देख लें ये अब ज्यादा- मुझे ये है ना कि मैं लास्ट हूँ ना, इसके बाद तो नहीं कोई। वैसे फातिमा उनको काशिफ भी यही- एंड पे एफ आता ना, मैं इनसे बड़ा मैं खुश हूँ कि एफ पे आके फातिमा खत्म। मगर सुने वो जब पहली की शादी हुई थी तो उनको भी लगता था वो लास्ट है। नहीं, वो तो नसीब में था ना, अब आ गई हैं। मैं ये कहती हूँ जैसे फातिमा काशिफ है ना, एंड पे एफ आता है और मेरा नाम फातिमा शुरू होता है, मैंने कहा फुल स्टॉप लग गया। अच्छा इतना प्यार आपको कैसे हो गया ऑलरेडी, मतलब इतनी मोहब्बत कैसे हो गई? मुझे औरत तो ये कहती है ये मर्द मेरा है, इसके अलावा इसको कोई देखे भी ना, छुए भी ना, मैं मुंह नोच लूंगी, खा जाऊंगी कच्चा। नहीं मैं ऐसा नहीं कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं आप लोग एक दूसरे को, एक दूसरे की शक्लें कैसे देख लेती हैं आप? हम सब इकट्ठी रहती हैं साथ। आप कभी हुआ है? शॉपिंग भी करने जाती हैं, खुद ही घर में खाना भी इकट्ठी खाती हैं। कभी चोटे ऐसे पकड़ नहीं, के? कभी भी नहीं लड़े हम। कुछ नहीं, चोटा नहीं नहीं, हम नहीं लड़े, हम भी कभी नहीं लड़े, ये भी नहीं, फिर हमसे किसी से भी नहीं लड़े। कभी आपका चाटा पुटा है? नहीं मेरा चाटा नहीं पुटा, इन्होंने पता है कि चाटा पुटिया सी आ गई। अच्छा मैं इसलिए नहीं लड़ती है ना, नहीं आपकी तो हो रहा मेरी है। बात सुने, क्या पड़ी थी आप लोगों की आपस में ग्रुपिंग करके तो किया पांचा एक कर रही थी, इनके ऊपर क्यों बरसी थी? असल में बरसी तो उन्होंने इनको बरसा दिया। असल में इसका नसीब इनके साथ आ रहा। नहीं अब ये बात कह के ये तो- तसल्ली ना आती ना। नहीं, ये नहीं तसल्ली बंदा की मेरी बात बात नहीं सुने, बंदा किसी को एवं ही हम जा रहा है सीधा सीधा जाके चपेड़ मार दे, उसको बोले भाई बुरा मत मानना तेरा नसीब था, ऐसे थोड़ी ना हो सकता। ऐसा होता है क्या भैया?
नहीं ना, ऐसी बात नहीं करनी आपने, सच सच बताना है मुझे, क्यों लड़ाई की थी आप तीनों ने? असल बात ये, वैसे भाई है मासूम, कोई भी अल्लाह पे ईमान मासूम रखने तो वाला चार मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ कोई भी परेशानी हो ना, वो एंड पे ये तो आप परेशानी थी उनकी जिंदगी में, आप ये कहना चाह रहे नहीं, हैं? हम तो बड़ी अच्छी तरह हमारी लाइफ बड़ी अच्छी जा रही थी। हम ये कह रही हैं कि ये अल्लाह की रज़ा थी, जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर नहीं बेहतरीन करता है। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है, कोई शक नहीं, बेशक। हम अल्लाह पे यकीन रखती हैं, इसलिए हम चारों बहनों की तरह रहती हैं, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। क्योंकि घर के हमने काम ये मान कैसे लिया होते है हैं, कि कौन अल्लाह की बांटता रज़ा है, थी। कौन बांटता है काम आपस में एक दूसरे को? हम सारी मिलजुल कर आपस में मैं बता देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बड़ी हैं इनका खाना बहुत ज़बरदस्त बनाती हैं, और ये जो सबसे है बड़ी वाली खाना सबसे अच्छा बनाती बहुत अच्छा बनाती हैं खाना। और ये जो नंबर 2 पे हैं, ये कपड़े बहुत अच्छे धोती हैं थापे के साथ। था अब हाँ, गिव मी 5 थापे के साथ अब भी धुलते हैं कपड़े? अब भी। और हम मतलब हमारे हमसाए हम सब उठ जाते हैं जब ये कपड़े धोती है। ये मतलब जो मुलाजिम है उनको कहती है आप पीछे हट जाओ, आपसे साफ नहीं हो रहे, वो मशीन से ऐसे वो निकाल के ये फिर पकड़ के ये कपड़े बहुत अच्छे जो है ना वो सारे घर वालों के सबके कपड़ों की ड्यूटी आपकी है, कपड़े आपने धो, कभी इनको धोया? नहीं, तापे के साथ धोती है, प्रैक्टिस नहीं, है ये आपकी, बहुत आप अच्छा चाहती है, तो बहुत कुछ कर सकती नहीं, थी, ये है, हुनर आपके हाथ में मौजूद था। ये बात नहीं है। ढुस ये बोलती बहुत कम है, बच गया, इसीलिए किसी से हुनर था, झगड़ा नहीं होता है ना? ये बहुत कम बोलती है। ये बेगम जो है ये बच्चों को बहुत संभालती हैं, उनकी केयर करती हैं और हाजिरी पूरी करती हैं कि बच्चे ये टीचर खाना ये भी बड़ा अच्छा अच्छा, तो सारे बच्चे जो अटैच हैं वो फिर इनके साथ है, सलमा के साथ है? नहीं, सिद्रा के साथ अटैच है, ठीक है, सलमा तो आप ही साथ। तो आपके साथ सब बच्चों की मोहब्बत, जो चीज चाहिए, खेलना कूदना बैठना, बच्चों को बिठा के बिजी रखना, वो आपका काम है। पढ़ाई वगैरह बच्चों की भी आप देखती हैं? बिल्कुल ऐसा ही। ओके, आपकी खुद की क्वालिफिकेशन कितनी है? मैंने मास्टर किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में। ये मुझसे भी ज्यादा पढ़ी हुई है। सही बंदी की ड्यूटी बच्चों की परवरिश पे लगाई है, पढ़ी लिखी भी है माशाल्लाह, तो बच्चों की सही लुक आफ्टर। और ये क्या करती है? मैं चुप करें आप। क्या करती हैं ये, क्या करती हैं? ये हमारे घर के जो कपड़े हैं ना ये ज़्यादा वो प्रेस करती हैं। अगर कोई मेहमान या कोई रिश्तेदार आ गया है तो इनके हैंड ओवर है कि ये उनका ज़रा ख्याल रखे कि मेरा कोई रिश्तेदार आ गया, तो ज़्यादा ये आप मेरे लोग को अभी भी रिश्तेदार की जरूरत पड़ती है? मैं तो नहीं, रिश्तेदार तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आते हैं, बहुत मैं ज़्यादा तो आते कही थी हैं। जिस गली मोहल्ले में आप लोग खड़े हो जाएं पूरी फैमिली, तो वहां से गुजरना मुश्किल है। ऐसा ही है, लेकिन और अगर कोई लड़का लड़की इधर से ऐसे गुजर जाए तो उनको पहले निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि तंग हो रही है जगह। आप लोग को शादी पे तो कोई नहीं बुलाता होगा? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कार्ड में स्पेशली लोग लिखते होंगे प्लीज बच्चे दो ही अच्छे तुसी नाल केड़े केड़े बच्चों को लेकर आओ। अच्छा ठीक है, हैं? तभी तो मेरा एक है, मैं इसलिए जाती हूँ। अच्छा आप जाती, शादी आप भुगताती हैं? नहीं, शादियाँ ये दोनों करती हैं और फोतगियाँ वो दोनों हैंडल करते हैं। मेरी बात ये बड़ी समझदार थी, इसने कहा बच्चे ज्यादा होंगे तो किसी ने शादी पे इनवाइट नहीं करना। नहीं कुछ तो मैं आ इसलिए गई शादियों पे जाने ब्रेक के लिए लगा बच्चे दी। नहीं रखते। शादियों पे जाने के लिए ये दोनों हैं और फौजियों पे फौजियों जाने के के लिए लिए वो है अफसोस या जो कुछ भी है वो। मतलब कोई बीमार हो जाए, कोई अगर फौत हो जाए, कुछ भी हो जाए, तिमारदारी, मतलब रोना धोना भी आप दोनों अच्छा कर लेते हैं, इसलिए फौजियों पे आप लोग जाते हैं, पिटना पा लेते हैं, ये आप आराम से कर लेते हैं दोनों। हाँ, इनका तजर्बा ज्यादा है, वो जो पिटने वाला आप बोल रही है ना। जाहिर सी बात है, नई नई शादी हुई थी तो सबसे पहले बड़ी वाली रोई होगी, फिर उसके बाद बीच वाली रोई होगी, फिर तीसरी वाली जब वो यूज्ड टू हो गई, फिर ये तो वैसे ही भी खुशहाल जिंदगी गुजारी है। मैंने कहा चलो लेकर आते हैं। लेकर आते हैं ये नहीं, भी खुशहाल जिंदगी है चारों ना? ही गुजार हाँ। रही हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, एक एक करके मैं सबसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने हस्बैंड को प्यार से क्या पुकारती हैं रांझे के अलावा? जी आप बताइए, मैं घर में क्या पुकारती हैं प्यार से? मैं कोई नाम ना ही नहीं लेती। नाम ही नहीं लेती? मैं नाम लेना पसंद ही नहीं करती। हैं? ये तो नहीं फिर? वैसे इनको कह दूंगी सुनिए, बस ये सुन लेते। बस सुनिए। अच्छा अजी सुनिए, ऐसा बोलती हैं? हाँ जी। और आप क्या बोलती हैं? हकीम साहिब। और क्या बोलूं? कितने को इलाज करवाने हैं अपने, जिंदगी में आ गए हकीम, बस कर दें। हाँ। जब कोई जरूरत होती है फिर हकीम साहब होते हैं ना, वैसे तो फिर काशिफ जी भी हो जाता है। अच्छा। और आप क्या कहती हैं? मैं काशिफ साहब कहती हूँ। साहब? हाँ जी, हमारे साहब हैं। आप इनकी क्लिनिक में जॉब तो नहीं करती थी? नहीं नहीं करती थी ना? अरे यार बड़ा नाम रखा है। आप क्या कहती हैं?
मैंने सादिया का पापा अदील के पापा। इसका वो साहब है, पहले ज़माने की जो औरतें होती थी ना, वो अपने खामदों का नाम लेने में बड़ी शर्म महसूस करती थी। तो एक बीबी नमाज पढ़ रही थी, उसके खामद का नाम था रहमतुल्लाह। तो वो सलाम जब फेरने लगी तो कहती अस्सलाम वालेकुम काके के अब्बा, अस्सलाम वालेकुम काके के अब्बा। इसका वो हाल है, ये काके का अब्बा कहती है। ये बेइज्जती महसूस करती, मैंने नाम दिया तो बड़ी बेअदबी होगी। हाँ, मैं काके का अब्बा। हाँ जी, ये काके का अब्बा है। हाँ, काके का अब्बा। काकों के काके हो गए और अभी ये काके का अब्बा है। अच्छा मेरी बात सुने, लोगों को कोई मैसेज देना चाहती हैं तो दे दे। देखिए आज के दौर में ना जो सबसे ज़्यादा इशू है वो यही है कि अगर मियाँ ने एक और शादी कर ली है तो वो घर टूट जाएगा, कंफर्म टूटेगा। वो औरत नहीं रहती, वो औरत बर्दाश्त ही नहीं करती। ठीक है, आप कोई अगर अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से कोई मैसेज देना चाहती हैं जिससे अगर किसी का घर बसा रहे या अगर किसी की शादी हो गई है तो वो किस तरीके से फिर अपनी लाइफ को मूव ऑन करे, सबसे पहले आप बताइएगा भाभी, क्या मैसेज देंगे लोगों को? वो मैसेज यही है कि जो होता है वो अल्लाह ताला की रज़ा से होता है और अल्लाह ताला के अगेन तो हम बोल ही नहीं सकते। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी कि हर एक बीवी जिसके खामद ने 2, 3 या एक और बीवी के बाद बीवी कर ली हो, तो उस बीवी को ये चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो किया है बेहतर नहीं बेहतरीन किया है और अल्लाह की रज़ा पे खुश होना चाहिए। अगर हम अल्लाह की रज़ा पे खुश हो जाएंगी तो कोई परेशानी भी होगी तो हमें परेशानी नहीं महसूस होगी और हमारी लाइफ अच्छी गुजरेगी। अगर हम ये सोचें कि इसने बुरा किया है, इसने मुझे घटिया बनाया है, नहीं ले आया है, तो इस तरह हमारी जो ज़िंदगी है ना, मैं हूँ या कोई भी औरत है, तो बहुत मुश्किल हो जाए। क्या बात है, आप क्या कहेंगी? मैं यही कहूँगी कि खानदान ज़्यादा मजबूत होता है, मियाँ बीवी का जो प्यार है ना वो ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर दूसरी आ जाए ऐसा होता है। अच्छा एक हाँ, बयान में मैं दो भी तलवार। अच्छा, मैं भी यही कहूँगी, अगर होता है, शादी जैसे कोई मर्द को लड़की पसंद आ जाती है तो वो अगर अपनी बेगम से कहता है कि मैंने करनी है तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा दे देनी चाहिए। अच्छा बात यही है कि आज के दौर में जो है ना औरतें ये कहती हैं कि तुम जाओ गर्लफ्रेंड बना लो, बाहर जाके अफेयर चला लो, नैन मटक्का कर लो, मगर शादी निकाह नहीं करना तुमने, बीवी मैं ही रहूंगी तुम्हारी। तो आपको पता है ये गलत है, वो गुनाह है, ये गुनाह भी है, ये गलती भी है, ये खराबी भी है। और माशरे में उन लड़कियों को, उन बच्चियों को जिनके साथ अफेयर चलाया जाता है, जिनके साथ नैन मटक्का है, जिनके ऊपर मोहर लगा दी जाती है आशिकी की, ठीक है, या बच्चियां इस तरह ख़राब कर दी जाती हैं या उनके साथ ताल्लुकात बनाए जाते हैं जो गैर ताल्लुकात होते हैं, तो ये चीज़ें ना करें। अगर करना है, को पसंद है तो आप फिर निकाह करें, शादी करें, उसको रिश्ता दें, उसको हक दें, उसको बाकी बीवियों की तरह जगह दें, माशरे में नाम दें, ऐलान करें, बताएं कि आप निकाह में हैं, आपने शादी की है, ना कि आप किसी लड़की को अफेयर के नाम पे जलील करें। तो मैं आपको बुरा नहीं कहूँगी, मैं आपको कहूँगी आप सबकी बेगमात के साथ आप खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं आपके, और अल्लाह ताला आपके बच्चों के भी नसीब अच्छे करे, अच्छे घरों में शादियाँ कराए, और जैसी भी आपकी अब ये फैमिली आपके साथ चल रही है, अल्लाह ताला आपको इस आसान मरहले से बिल्कुल ऐसे यूं गुजार दे, है ना। है तो मुश्किल मगर है, अल्लाह हाफिज़, है ना।